Hello everyone, welcome to Gyanbudh Academy. I'm Madhulika. Today is your 25th December. Today is Christmas, but we will be again looking at articles today. The first article is here from the Times of India, and it is a very important news. See, it's a sports related news. It's a sports related news, but you will say that this is not valid for your examination. But the theory of what the news talking about, of what outcome it is trying to portray with to us, that becomes very important from the newspaper point of view. It especially becomes important for your ethics paper. You know why? Because the article is talking about qualities of governance, then it is talking about your accountability. It is also talking about, justice, or something like sexual harassment is being talked about. Even we are talking about the power, how power is corrupting people. We have all heard about the fact that power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. We are all aware of this fact. Essay can come in this topic, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. It is very much regarded, and here we have an article regarding the same. So before I jump into the article discussion, I would like to give you a brief introduction to the topic. The topic is regarding the Wrestling Federation of India. Wrestling Federation of India. Here, the news is that the Union Sports Minister, or I can say the government of India, he has suspended the newly elected body of the Wrestling Federation of India, and uh, the main president of the, or you can say the main head of the Wrestling Federation of India has been suspended. His name is your Sanjay Kumar Singh. Sanjay Kumar Singh. He has been suspended. Now, why? What is the reason of suspension? There are various reasons, but the most first reason is that he is not following the norms. He is against the norms and regulations. Why? Because the Olympics, or I could rather tell you, there was a tournament where he announced, he did not announce the participants about the tournaments, and without formal announcements, or without telling them about the tournament that is going to be held, he announced for taking a match or a trial. That was very you know very sickening for the participants or the practitioners. Plus, this was one of the reason that he was against the norm. Second, it was that it was a newly elected body, means थर्सडे को ही उनका इलेक्शंस हुआ था का, और तुरंत ही उनको सरकार ने सस्पेंड कर दिया ऑन द ग्राउंड्स दैट ही वाज टेकिंग सजेशंस और ओपिनियंस और वर्किंग इन इन्फ्लुएंस किसी के बहकावे में आना। और किसके बहकावे में काम कर रहे थे? द फॉर्मर president या former chief of the WFI, Wrestling Federation of India. Now, who is he? He is also very important part here. He is being, that is ब्रिजभूषण सिंह। ही वॉज द फॉर्मर मतलब जानते हैं, पहले पहले कौन थे इसके चीफ? WFI के चीफ पहले थे ब्रिजभूषण सिंह, और आज के टाइम पे जो न्यूली इलेक्टेड थे उनका नाम था संजय कुमार सिंह, जिनको सस्पेंड कर दिया गया ऑन दीज 2-3 पॉइंट्स. Now let us see this in much detail. So let me read the headline. Wrestling with Power, Wrestling Federation of India suspension as an opportunity to clean up, deliver justice and catalyze accountability across federations. इसमें बोला जा रहा है कि इस न्यूली इलेक्टेड बॉडी या इनका चीफ, इनके हेड का क्या हो गया? सस्पेंशन हो गया भारत सरकार द्वारा. ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जस्टिस डिलीवर करें. जस्टिस क्यों? क्योंकि हम लोग आगे बात करेंगे. और दूसरा, अकाउंटेबिलिटी हो. अकाउंटेबिलिटी की क्या एक्चुअली स्पोर्ट्स के फील्ड में हो रहा है. ये मुद्दा बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है. क्यों? क्योंकि ये ब्रिजभूषण सिंह है जो फॉर्मर इसके चीफ थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन पे सेक्सुअल हरासमेंट का अपने जूनियर्स पे या फिर जो फीमेल मेंबर्स थी रेसलिंग टीम के, उसमें उनका आरोप था बहुत पहले से, इनफैक्ट जनवरी से. हाँ, इनका खिलाफ FIR भी रजिस्टर हुआ था दिल्ली पुलिस में अप्रैल में, बस आज तक इनके खिलाफ लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये सिद्ध नहीं हो पाया और ये अभी तक टीम में बने रहे.
इसीलिए इसमें बोला जा रहा है कि जस्टिस डिलीवर करे एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन किया जाए, ताकि एक अपॉर्चुनिटी मिला और स्पोर्ट्स की टीम को आगे बढ़ाया जाए. So let us read. The government of India did well to suspend the newly elected body of office bearer of the Wrestling Federation of India on Sunday. The suspension was on the technical grounds, notwithstanding that it provides an opportunity to clean up the governance of WFI and make it safe and sports women. It also highlights the need to finish the investigation and prosecution process of Brij Bhushan Singh, which was set in motion by a charge sheet filed by Delhi police over 6 months ago. तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है, पहला पॉइंट बोला गया कि गवर्नमेंट ने बहुत सही किया सस्पेंड करके किसको, न्यूली इलेक्टेड, अभी थर्सडे को इलेक्ट हुए थे, संडे को उनको सस्पेंड कर दिया गया. कौन है वो? संजय कुमार सिंह न्यूली इलेक्टेड थे, उनको सस्पेंड कर दिया. वो क्या थे? ऑफिस बेयरर, या बोल सकते हैं हु इज़ ऑफिस बेयरर. वी ऑल नो द मीनिंग. ऑफिस बेयरर इज अ पर्सन हु होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हेड थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, या प्रेसिडेंट या चीफ थे बोल सकते हैं, बोल के उनको सस्पेंड कर दिया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स. इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है कि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्लीन अप द गवर्नेंस ऑफ WFI एंड मेक इट सेफ फॉर स्पोर्ट्स वुमेन. स्पोर्ट्स वुमेन के लिए सेफ मतलब क्यों? क्योंकि इट हाईलाइट्स द नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रोसेस ऑफ ब्रिजभूषण सिंह. सेफ इसलिए नहीं था क्योंकि इन पे ब्रिजभूषण सिंह जो पहले इसके चीफ थे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले जो चीफ थे, उन पे सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा था. इसीलिए सेफ करने के लिए, गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये स्टेप गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट था. Then what is the meaning of here? Prosecution. Prosecution basically होता है any charge of crime filed against anyone, and to prove anyone guilty in the court of law, that is called prosecution. तो हालांकि एविडेंस कम था इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, इसीलिए उनके खिलाफ कोई सबूत ना होते हुए उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया. हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑलरेडी FIR शीट, चार्ज शीट फाइल किया गया था 6 महीने पहले, यानी अप्रैल में ही उनके खिलाफ ऐसा एलिगेशन लगा था. Violation of WFI's constitution. Among the first act of WFI's newly elected president Sanjay Kumar Singh was to announce national level tournament for juniors without even following the guidelines mandated by the Federation Constitution. Government of India cited this as a reason for suspension. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप देखिए कि गवर्नमेंट क्या रीज़न देती है इनको सस्पेंड करने का. न्यूली इलेक्टेड बॉडी यानी संजय कुमार सिंह जो प्रेसिडेंट है, उनको सस्पेंड करने का रीज़न गवर्नमेंट ये बताती है कि उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अनाउंस कर दिया टूर्नामेंट का डेट. ठीक है, जूनियर्स या जो भी रेसलिंग पार्टिसिपेंट्स थे उनको कहा गया कि एक टूर्नामेंट लिया जाएगा. ये टूर्नामेंट एक U14 और एक U15 करके एक टूर्नामेंट था, जो कहाँ लिए जाने वाला था. एक गोंडा नाम का एक जगह है, वहाँ पे लेने वाला था. अब बेसिकली ये समझने का कोशिश कीजिए, गोंडा क्या था? एक कोर्टयार्ड है या एक बैकयार्ड बोल सकते हैं हम लोग. बैकयार्ड किसके यहाँ था? ये ब्रिजभूषण सिंह यानी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके बैकयार्ड में ऐसा टूर्नामेंट होने वाला था. एक टूर्नामेंट तो होने ही वाला था, प्लस इसका कोई अनाउंसमेंट पहले से कोई अनाउंसमेंट नहीं था, जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोग प्रिपेयर कर सके. प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दिया गया था. रूल्स को डिसोबे किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया. इस ग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहे रेसलिंग कॉन्स्टिट्यूशन या रेसलिंग नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते हुए गवर्नमेंट रीज़न बताती है कि उन्हें इस ग्राउंड में सस्पेंड किया गया. Next reason, let us find out. Private freedom. The National Sports Development Code 2011 is legally binding framework to ensure that sports federation, which have a monopoly and also receive public funding, are more accountable. WFI was functioning from Brij Bhushan's residence and also the location where wrestlers have alleged some of the sexual abuse incidents took place. Government of India said it's indicative of the status quo in the power structure despite a new set of office bearers being elected.
तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। प्राइवेट फ्लेबडम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेबडम? So basically, fiefdom mean a territory, or you can tell a land, a territory or a land that is controlled by a person or a group of people. ठीक है, वो होता है fiefdom. तो इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक को जो कोड होता है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, जो 2011 का एक लॉ बुक या कोड या गाइडलाइंस होता है, वो है इट इज़ अ लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क मतलब लॉफुली वो बनाया गया है लेजिस्लेचर्स के द्वारा या मिनिस्टर्स के द्वारा, टू इंश्योर द स्पोर्ट्स फेडरेशन हैव अ मोनोपोली एंड ऑल्सो रिसीव्स पब्लिक फंडिंग एंड दोज आर और अकाउंटेबल। ठीक है, उसके अलावा बोला जा रहा है कि WFI वॉज फंक्शनिंग मतलब क्या हो रहा था, टूर्नामेंट कहाँ प्लेस ले रहा था, ब्रिजभूषण रेसिडेंसी, मतलब उनका जो जगह था, उनका जो हम लोग अभी डिस्कस किए, उनका जो बैकयार्ड था, वहाँ पे उसका टूर्नामेंट्स हो रहा था या अनाउंसमेंट्स हो रहा था, जिसका पहले से किसी को ज्ञान भी नहीं था और अचानक से टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट हो गया था, जो पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत शॉकिंग था। So it was functioning from Brij Bhushan's residency, also the location where wrestlers have alleged some of the sexual abuse incidents took place. वहाँ पे उनके घर के बैकयार्ड में जब ऐसा टूर्नामेंट लिया जाता था, तो वहाँ पे स्पेशली फीमेल आपकी जो रेसलर्स थी, उन पे आरोप लगाई, अलाइज्ड मतलब क्या होता है, आरोप लगाई कि उनके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट हो रहा है ब्रिजभूषण द्वारा। तो गवर्नमेंट सेड इट इंडिकेट्स it is indicative of social status quo in the power structure despite a new set of office bearers being elected. तो इसमें क्या बताता है, what is the meaning of status quo? What is the meaning of your status? So status quo basically means the existing state of affairs. State of affairs, especially in terms of politics, we talk about state of affairs or the current situation. The government states कि कैसे कैसे पावर स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है या कितना गलत फ़ायदा अपने पावर का उठाया जा रहा है, जबकि संजय कुमार सिंह जब वो पावर में आए तुरंत वो किसके पहले किसके इन्फ्लुएंस में करने लगे, पहले वाले यानी ब्रिजभूषण सिंह के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे थे। तो ये भी पावर का गलत यूटिलाइजेशन हुआ कि कोई पहले से, मान लीजिए कोई आपके PM अभी मोदी जी है, अगर वो पुराने PM यानी कि हमारे मान लीजिए कांग्रेस के मनमोहन सिंह के इन्फ्लुएंस में काम करेंगे, तो ये गलत है कि नहीं, तो वही बात यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट, quick action needed. Power structure in such sports federation often overlap political power. It creates conditions that enable abuse of power. That's exactly what happened at WFI. One consequence of this overlap is that even when des- desperate measures such as the one adopted by wrestlers force police and investigation, the prosecution is slow paced. Brij Bhushan's prosecution need to be quickened if justice is to be done, and WFI run in the spirit of the rules established by Government of India. तो बेसिकली इस पावर में क्या बताया जा रहा है, द अब्यूज़ ऑफ पावर। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसे आपका आ सकता है कि पावर कैसे अब्यूसिव होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कैसे स्पोर्ट्स का जो फेडरेशन है, स्पोर्ट्स का जो फ्रीडम है, वो ओवरलैप कर दिया एक पॉलिटिकल पावर के द्वारा, या फिर पॉलिटिक्स भी एक तरह के घुसाया गया। क्यों, आप जानते होंगे ब्रिजभूषण सिंह वो आपकी BJP के मेंबर भी हैं, MP है भी है, ये लोग पॉलिटिकल पावर्स में भी है, तो कैसे वो अपने पॉलिटिकल पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या गलत फ़ायदा उठा रहे हैं पावर में अपने आप को और लाने का या चीज़ों को सेटल डाउन करने का, और ये एग्जैक्टली आपके WFI में दिखा है। तो इसका कंसिक्वेंस क्या है, दैट इतना मेजर्स लेने के बाद भी ये इतना आरोप लगने के बाद भी, आपको पता होगा ब्रिजभूषण सिंह पे आरोप आज से नहीं बल्कि जनवरी इस ईयर से लगा है, अप्रैल में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है, लेकिन क्या हो गया, पुलिस टीम्स, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दे आर वेरी स्लो, दे डू नॉट हैव एविडेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस उनके खिलाफ कुछ हो नहीं पाया, वो ऐसे ही रहते गए। तो दिस प्रोसिक्यूशन इज स्लो पेस्ड, बहुत स्लो है हमारे प्रोसेस। प्रोसिक्यूशन मतलब अभी हम लोग डिस्कस किए कि प्रोसिक्यूशन क्या हो गया, जो जो प्रोसेस है कि उनको गिल्टी प्रूफ करना था कोर्ट में, वो बहुत स्लो रहा। इससे क्या हुआ, इससे बोला जा रहा है कि इसको क्विकन करना चाहिए, इसको जल्दी जल्दी करना चाहिए ताकि जस्टिस मिल सके WFI के मेंबर्स को, और एक एस्टैब्लिश रूल के तहत सब लोग काम कर सके, पावर का कोई गलत यूटिलाइजेशन नहीं हो। सो लेट अस कंक्लूड विद दिस।
Three wrestlers returned their Padma Shri award in protest following Sanjay Kumar Singh's elections. It was tragic as WFI's role, according to the sports code, is to protect the welfare of the wrestlers. Sunday's suspension and I IOA's temporary takeover of WFI's affair is an opportunity to not only clean up but also signal that women athletes will be protected from sexual harassment in Indian sports. This will have a knockout effect on other federations and trigger greater accountability. So this here is a very important concluding point. इसमें बोला जा रहा है कि क्या हुआ, रेसलर्स लोग जिनके साथ गलत हुआ वो देख रहे थे कि संजय कुमार सिंह कैसे अपने पावर का गलत यूटिलाइजेशन कर रहे थे। पहले से टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट नहीं करके अचानक से टूर्नामेंट लेने लगे। फिर वो फॉर्मर जो बृजभूषण सिंह है उनसे सारा लिंक करके काम करवाते थे। तो इसमें क्या हुआ था कि रेसलर्स उनके प्रोटेस्ट में बैठ गए थे। उनका जैसे ही इलेक्शंस हुआ तुरंत वो थर्सडे को इलेक्ट हुए, तो जो रेसलर्स थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। और इसमें क्या किया, वो लोग अपना जो अवार्ड्स मिला था उसको वो क्या किए, रिटर्न करने लगे प्रोटेस्ट को और ज़्यादा महत्व देते हुए कि लीजिए अपना अवार्ड। और अवार्ड को रिटर्न करते हुए उसके अगेंस्ट बोलने लगे। इसके अलावा आप देखिए इसमें बोला गया है कि जो स्पोर्ट्स कोड है उसका डेकोरम को सबने ब्रेक किया। वेलफेयर ऑफ द जो रेसलर्स था उसको भी नुकसान किया गया। और इसके अलावा जैसे ये सस्पेंड हुआ, क्या सस्पेंड हुआ, ये पूरा इलेक्टेड बॉडी सस्पेंड हुआ। इलेक्टेड बॉडी विच वी आर टॉकिंग अबाउट WFI सस्पेंड हुआ, तो एक टेम्प्रेरी टेक ओवर दिया गया। टेम्प्रेरी टेक ओवर दिया गया किसको, आपके IOQ, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। रिमेंबर दिस कीवर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उसको टेक ओवर दिया गया ताकि द अफेयर्स ऑफ WFI कुड बी टेम्परेरी मैनेज्ड बाय देम। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू क्लीन अप एंड इवन रेज वॉइस फॉर दी वुमेन एथलीट इन स्पोर्ट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हरासमेंट और पॉक्सो एक्ट। वी हैव ऑल हर्ड अबाउट पॉक्सो, मतलब छोटे छोटे माइनर वाले फीमेल्स के साथ स्पोर्ट्स में कैसे दुर्व्यवहार होता है इंडियन स्पोर्ट्स में, वो इसके एक बड़ा अटेम्प्ट है जो सस्पेंशन हुआ है वो। देन दी फाइनली इट इज टेलिंग दिस विल हैव अ नॉक ऑन इफेक्ट ऑन अदर फेडरेशंस एंड ट्रिगर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल रहेंगे जो मिनिस्टर्स है, जो ऊपर सत्ता में काम कर रहे से अकाउंटेबल रहेगा, थोड़ा डर रहेगा। एंड दिस इज नॉक ऑफ। नॉक ऑफ मतलब क्या होता है, नॉक ऑन मीन्स एनी इवेंट दैट हैपन्स आफ्टर अनदर इवेंट। तो अगर आज ये इवेंट हुआ है तो इट विल अफेक्ट एनी अदर इवेंट जो ऐसे मिनिस्टर्स या सत्ता में बैठे पॉलिटिशियंस द्वारा होंगे या रूल्स या डेकोरम का मिस यूज़ होगा। So that was all for today. Thank you and have a wonderful day ahead.